وقفے سے واپس آ چکے ہیں. بڑا اہم نقطہ اٹھا دیا ہے اسلم بھائی نے. اسلم بھائی, شرجیل کو پانی بھائی نے تو اس بات کی تائید کر دی کہ ہاں پرائیویٹ ہے, لیکن جب پرائیویٹ نہیں آئے, جب آپ کا گورنمنٹ ٹینکر ہمیں نہیں ملے گا تو پانی تو گھر پہ چاہیے نا, کیسے ملے گا پانی؟ میں وہی اس بات کی جانب آ رہا ہوں. میں نے آپ سے کہا تھا, ایک تو پانی کی سپلائی کے حوالے سے میں نے کہا نا کہ ایک بڑا پروگرام کریں, اسی میں ڈیفائن کیا جائے گا ساری چیزوں کو, لیکن کسی حد تک ہم نے کور کرنے کی اس کو کوشش کی ہے ہمارے صلاح الدین صاحب نے, کہ ایک 530 ٹینکر جو ہائر کیے ہیں اور وہ گورنمنٹ ریٹ پہ جو ہے پانی کی سپلائی دے رہے ہیں. بہرحال وہ ناکافی ہے, میں بھی یہ سمجھ رہا ہوں, لیکن جو آگے کا پروسیس ہے بڑی پروگرام میں انشاءاللہ بتا دیں گے. لیکن مجھے تھوڑی سی ایک گزارش کرنی ہے اپنی اس عوام سے جو کہ گھروں میں کس طرح سے پانی استعمال کرتی ہے, یعنی کہ اپنی پانی نہ ہوتے ہوئے بھی وہ پائپ لگا کے گاڑیاں بھی اپنی واش کر رہے ہوتے ہیں فل فریش ماشاءاللہ, ٹھیک ہے نا, اپنی گارڈننگ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں, ضائع کر رہے ہوتے ہیں. میری آنکھوں کے سامنے بہت ساری چیزیں. تو ان سے میری گزارش ہے کہ پانی کو ایک نعمت سمجھیں, یہ سمجھ لیں آب زمزم ہے, یہ آب زمزم سمجھ کے اس کو استعمال کریں اور اس کو اسی لحاظ سے خرچ کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں. اس کو اس سے زیادہ استعمال کرنے کی کوشش نہ کریں, پھر آپ ہی تکلیف اٹھاتے ہیں, آپ ہی کو پریشانی ہوتی ہے. پانی تو انشاءاللہ ڈپارٹمنٹ آپ کو دیتا رہے گا آگے 1-2 سال میں, اور آپ کو بہتری کی جانب سب. کل کی کیا بریکنگ نیوز ہے؟ کل کے بعد تو پانی نہیں ملنے والا نا؟ نہیں, کل تو خالی کچھ علاقے متاثر ہوں گے, جو سائفن 20 ہے وہاں پہ. کون سے علاقے متاثر ہیں؟ ہاں کچھ علاقے متاثر ہوں گے, پورا کراچی متاثر نہیں ہو رہا اس سے, کچھ علاقے متاثر ہوں گے اگر وہ بند کی جاتی ہے, جو ابھی تک کی اطلاعات ہے, لیکن ابھی تک مجھے کنفرم نہیں ہے یہ چیز. ایوب عثمان ہمارے بھائی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, باخبر پاکستان کے نمائندہ خصوصی ہیں, آج کو ہوسٹ بھی ہیں میرے. ایوب بھائی کیا کہیں گے آپ؟ اسلم بھائی کی آپ نے پوری بات سماعت کی. میں سب سے پہلے تو کہوں گا, دیکھیں ہمارے ساتھ تاجر رہنما بھی ہیں, ہمارے ساتھ بلڈر بھی ہیں, ہمارے ساتھ واٹر بورڈ کے کانٹریکٹر بھی ہیں, ہمارے ساتھ اینکر بھی ہیں, میں ایک عام آدمی بھی ہوں. کیا میں یہ ایز کامن مین, ہاں ہمارے درمیان کوئی سرکاری بادشاہ سلامت نہیں ہے. جو ہمارے بادشاہ سلامت ہے مالک ہم ہیں, پیسے ہمارے ہیں, ہر چیز ہماری, ٹیکس پے کرتے ہیں, لیکن کہ جس بھی چیز کا محکمہ کریٹ ہو جاتا ہے نا, وہ آپ کو سہولت دینے کے لیے نہیں ہے. بس میں یہ 550 جو ٹینکر ہیں یہ کوئی پانی پہنچانے کے لیے نہیں ہے آپ کو. 2200 کا ایک ٹینکر ہے, وہ اگر پر ڈے حساب کرے تو کتنا بزنس ان کو. کے قریب ترین بندے کو آپ نے کہا کہ 21 کے پروگرام کے اینکر نے تو 2200 کا ٹینکر ملا ہے نا. بالکل کیا ہو گیا, گوپلانی صاحب 8000 حکومت کے ساتھ باہر جا رہے ہیں, 8000 کا ٹینکر لیا. اشرف بھائی آپ کا ٹینکر کتنے کا ہے؟ وہی تو 12,000 کا. اشرف بھائی عام آدمی کا درد سمجھیں. میں تو یہی کہوں گا کہ بلی چوہے ثواب کے لیے نہیں مارتے. میں اپنی بات بتاؤں, آج میں اللہ کو جواب دوں, میں اتنے اس مقام تک پہنچنے کے باوجود میں کبھی صفائی سے نہ پانی کا ٹینکر لیا آج تک. میرے گھر پہ پانی کا ٹینکر نہیں ہے. بجلی کا محکمہ کا ڈائریکٹ مونیٹری کا نمبر میرے پاس موجود ہے, اور آپ نے دیکھا جو میں نے کیا ان کے ساتھ, ٹھیک ہے. میں نے اپنے گھر پہ سولر لگا دیا, اس کے باوجود بھی میرا بجلی کا بل میں پورا پے کرتا ہوں. میرا ٹیکس, ایڈوانس انکم ٹیکس اور ایڈوانس سیل ٹیکس, جس دن سیل ٹیکس اس ملک میں لاگو ہوا ہے اس دن سے میں پے کرتا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں, جب بھی دعا کرتا ہوں, بھی یہاں بیٹھے ہوئے, میرے دل سے بد دعا جو ہے ان حکمرانوں کے لیے اور محکموں کے لیے پوری ہوتی ہے. میں جب سرکار کے روزے پہ جاتا ہوں, سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ روزے پہ جاتا ہوں, جب میں نواز رسول کے روزے پہ جاتا ہوں ہر سال, میں خدا کی قسم ان لوگوں کے لیے دن بھر کے بد دعائیں کرتا ہوں. اس لیے بد دعا کرتا ہوں کہ میرے ساتھ, میں اپنی بات نہیں کرتا, مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہوا ہے کہ میں افورڈ کر سکتا ہوں. جو شخص افورڈ نہیں کر سکتا اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے. آج ہمارے بچوں کی تعلیم کا معیار دیکھ لیں. ابھی آپ جو بات کر رہے ہیں, حکومت جو گھر کے اندر آپ لوگ جو دیکھ کر ہیں, ایسے میں بے تحاشا لوگوں کو جانتا ہوں جن کا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, حکومت کی ہر شخص کو شیلٹر پرووائڈ. ہزاروں لوگوں کی تو آپ کی حفاظت بھی کر رہے ہیں. ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ پاکستان وہ بنے گا جو ہمارے ہر حق کا تحفظ اور ضامن ہوگا, ہمارے حقوق کا. ہمارے جو بڑے ہیں, ہمارے بڑوں کی قبریں آج بھی یہاں موجود ہیں, ٹھیک ہے. 200 سال سے میری اپنی کمیونٹی کی, میری اپنے خاندان کی تاریخ 200 سال سے اس شہر کے اندر ہے. اس میں اگر آپ بات کریں تو پہلی جو مسجد ہے کراچی میں, یا پہلا جو حاجیانی حنیفہ بھائی اسکول جو کہ سر عبداللہ ہارون کی فیملی نے بنایا تھا, وہ بھی میری کمیونٹی سے بلونگ رکھتے ہیں. جو صدر کے اندر جہاں آپ کے پارسیوں کے عبادت خانے تھے اور کرسچنس کے آپ کے چرچ بنے ہوئے تھے, وہاں پہ صدر میں پہلی مسجد جو بنی تھی وہ ہماری کمیونٹی نے بنائی, صدر میں میمن مسجد, جہاں پہ علامہ شاہ احمد نورانی صاحب جو ہے وہ امامت کرتے تھے. لیکن میں اس شہر کا باسی ہونے کے بعد پھر بھی میں اس شہر سے, آج میرے بچے شہر میں ملک میں رہنے کو تیار نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پہ جو لوگ, جس بھی محکمے کے لوگ ہم پہ جو ہے حکمرانی کر رہے ہیں, جو میرے بھائی نے بات کی بادشاہی نظام تو شاید کچھ بہتر ہوگا,
जो ये निज़ाम है, सरकारी नौकर जो है, हमारा नौकर जो है वो हम पर बादशाह है। अच्छा, जैसे हनीफ भाई बात कर रहे हैं ना कि इनकी फैमिली ने किया, शर्जील भाई, कि ऐसे ही आपने मेयर भी बनाया, अब ताजिर रहनुमाओं ने ही तो करप्ट सियासतदान बनाए हैं। हमने आज सियासतदानों की पहली सपोर्ट वो बिजनेस कम्युनिटी है, जो एक फारिग तरीन करप्ट बंदे को लाके सीट पे बिठा देती है। वो उसके पास फंड कहाँ से आता है? अपने आपने नहीं किया होगा, लेकिन वो जो बंदा है वो भी बिजनेसमैन है। नहीं, मैं इंटरप्ट करूंगा मैं यहाँ पे। वो भी बिजनेसमैन। मैं खुद इस इलेक्शन में खुद उतरा, मेरे साथ कितने ताजिर रहनुमा उतरा, और सबको हमने बोला कि भाई आप अलग अलग पार्टी से उतरे। कोई पीपल्स पार्टी से किसी ने इलेक्शन लड़ा, किसी ने एमक्यूएम से लड़ा, किसी ने पीटीआई से लड़ा, मैंने तरीके लब्बैक से लड़ा। हम इन चीज़ों को देखते हुए कि हमने ये भी कोशिश करके देख ली, हमने यहाँ का निज़ाम देख लिया। हाँ, मुझसे पैसे मांगे गए सीट के लिए, मैंने नहीं दिए। टीएलपी का इंतखाब किया, मैंने टीएलपी का इंतखाब किया। मेरे साथ मेरा जॉइंट सेक्रेटरी पीटीआई से इलेक्शन लड़ा, मेरे साथ मेरा जो है एमपी भी है। हमने ये नहीं सोचा कि कौन सी पार्टी है, ठीक है, हमने फैसला किया कि भाई जिस पार्टी से जिसको टिकट मिलता है वो इलेक्शन लड़े। हमारे लोगों ने पीपल्स पार्टी से भी इलेक्शन लड़े। लोग जीते। हमारा एक नुमाइंदा जो है एमपी आ गया, और वो आपके सामने असेंबली में जब जाता है तो वो सही तरीके से बात भी करता है, लेकिन बाकी मैं नहीं आ सका, मैं मानता हूँ। हमने कभी भी पॉलिटिशियन सपोर्ट नहीं, ना इस करप्ट मेयर को हम सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो मेयर जो है, मेयर के नाम पे धब्बा भी है। फॉर्म 37 भी छोटी चीज है, ये कैसे मेयर आया है, ये मेयर कैसे आया है? इस शख्स को तो तमीज नहीं है, बकवास कर जो करता है ये। जिस तरीके से इसने नेशनल चैनल पे ताजिरों के बारे में बात की है, इसको हक भी नहीं है बात करने का, क्योंकि ताजिर। शर्जील भाई ये बताएं, आपके दुकानें भी हैं, वहाँ पथारे भी लगते हैं। एक चीज मैं 4 प्रोग्रामों में कर रहा हूँ कि जी टीएमसी आपसे अलहदा टैक्स पर्ची लेने आती होगी, केएमसी अलहदा आ रही है, ऐसा ही है। और फिर केडीए पार्किंग के पैसे अलहदा ले रही है, टीएमसी पार्किंग के पैसे अलहदा ले रही है। इन महकमों में जंग चल रही है आपस में, गुत्तम गुत्ता है। एक टैक्स है, एक्साइज का ट्रेड लाइसेंस, ठीक है, समझ में आता है, इसका टीएमसी का समझ में आ गया। एक आपका जो है टैक्स लेती है एक्साइज, वो आप यकीन करें बरतानिया के दौर में वो टैक्स लिया जाता था जो आपकी नेपियर रोड की नायकाओं से, वो टैक्स ताजिरों पे लगा दिया गया। एक्साइज का महकमा वो टैक्स लेता, और हमने बाकायदा डायरेक्टर को बोला भाई आप इसकी तारीख उठाएं, ये जो प्रोफेशनल टैक्स के नाम का जो टैक्स है, ये बेसिकली आपकी नेपियर रोड की नायकाओं का टैक्स था, और ये सिंध गवर्नमेंट ने ताजिरों से लेती है, और ताजिर इस पे फिर लड़ाई होती है हमारी झगड़े। अच्छा, फिर उसका लेने का तरीका, आप इनकम टैक्स का रिटर्न दें, इस पे हम बताएंगे कि कितना टैक्स बनता है। इतना बड़ा करप्ट है। अभी आपको मैं बताऊं, सिंध रेवेन्यू बोर्ड। शर्जील भाई, मैं आपकी बातों से बिल्कुल एग्री हूँ। अशरफ भाई हमारे दरम्यान मौजूद है। अशरफ भाई, शर्जील भाई ने तो वो मुर्दे उखाड़ दिए कि जिसको उखाड़ने में टाइम लगेगा। मेरे कराची की बात की जाए, ना खुश हैं, ठीक है, सुनवाई नहीं है ना। जब आप बम गिराते रहेंगे, महंगाई का बम गिराते रहेंगे, टैक्सेस बढ़ाते रहेंगे, हर चीज़ में टैक्स है, भाई ताजिर कहाँ जाए? अगर वो बिजनेस करेगा तो ही कुछ करेगा ना। अब आप अपनी बात कर लें, आप कहाँ थे? देखें अशरफ भाई, अल्लाह पाक ने आपको भी नवाज रखा है, शजील भाई को भी, असलम भाई को भी, अयूब भाई को भी, आप साहिब इस्तिताअत हैं, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो लोग रोज गड्ढा खोदते हैं और रोज अपने घर पे लेकर जाते हैं? क्या कहें? आपको देखें, ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये प्रैक्टिकली सारे इदारों में इनका दिन रात ये मामलात हैं इनके। अच्छा, इनका गुस्सा इसलिए है कि ये दर्द रखते हैं, अपनी बात इसलिए कहते हैं कि लोग जो है बेहतरी की तरफ आ जाएं, वरना ये मौका नहीं मिलेगा। इस सब से हम निकल जाएंगे, फिर हमारे हाथ में, लोगों के हाथ में कुछ और होगा, और वो जिसको मैं कहता हूँ ना कि किसी को बहुत बड़ा इंसिडेंट ना हो जाए। लोग किसी की नहीं सुनेंगे, क्योंकि बर्दाश्त निकलती, बच्चे बीमार हैं, लोग मर रहे हैं, दवाइयाँ नहीं है, खाने को नहीं है, अगर प्राइवेट का रुख करेंगे तो, जैसे अभी पानी, बिजली, गैस, ये भी नहीं है, बेसिक चीजें तो। अच्छा, पैसे भी हम दे रहे हैं, जीने के लिए कुछ भी नहीं है, आपको जीने के लिए कुछ दिया ही नहीं जा रहा, इसमें टैक्स लग जाएगा। अच्छा, अब ये जो सारी बातें आपने मज़ाहिया कहा कि कुंवारे जो है वो वार्निंग आपने दे दी कि अब इन पे टैक्स आने वाला, बिल्कुल तो सही है। बहुत सारी चीजें, जैसे वो कब्रिस्तान पे भी इन्होंने लगा दिया है कोई टैक्स। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूँ, असल बात ये है कि पॉजिटिविटी कहीं से तो स्टार्ट हो, ऐसा ही है, किसी जगह से भी हो। ये जो बात कर रहे हैं, ये दर्द से बात कर रहे हैं, इनको अपनी जात से कोई नुकसान नहीं है। ये कहते हैं मैं तो अफोर्ड कर लेता हूँ, लेकिन गरीब आदमी जो बेचारा बहुत मुश्किल में है और उसका रोज का गुजारा भी नहीं है। आप 25-30 हज़ार रुपये तनख्वाह हमारी यहाँ एवरेज है जो आम आदमी की है बेचारे की, वो राइडर है या बेचारा वो फूड पांडा चला रहा है, उसकी तनख्वाह क्या 40,000 35,000, पेट्रोल का खर्चा निकाले, बेचारा 16 घंटे 15 घंटे टिप पे गुजारा।
अच्छा ये करप्शन जितनी भी बढ़ रही है कहीं न कहीं तो इसका एंड है ना, नहीं होगा तो आप समझ लें कि फिर हम सब तबाह बर्बाद होंगे। अल्लाह ना करे, लेकिन अल्लाह पाक से दुआ है। नहीं, दुआ वाली बात तो हम देखिए, दुआ तो आप फलस्तीन की 40 साल 60 साल से कर रहे हैं, कोई हासिल नहीं हो रहा। बहुत अच्छी, कश्मीर के लिए कर रहे हैं सर। सिंसियरिटी नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, यकजहती नहीं है, यकजा होना पड़ेगा। अफगानिस्तान अपना वो अफगानी है, वो पाकिस्तान में आके वो अफगान की बात होती है तो घुरा के निकलता है, ऐसा ही आंखें दिखाता है, पूरे का पूरा इनका मजमुआ खड़ा हो जाता है। बंगाली है, कहीं आप बात तो कर लो एका। तो आप पाकिस्तानी इतने मतलब वो आप लाचार हो गए हैं, ये बहस हो गए। मैं बेगैरत लफ्ज मुंह से निकलते निकलते रह गया, माफ करना चाहिए मुझे कि मैं सच बताऊं, जज्बाती अशरफ भाई और शजील भाई जज्बाती हो चुके हैं, बहुत ज्यादा परेशान हाल है ना, जब सुनवाई नहीं है, दर्द है आपके दिल में। यार ये चीज, अच्छा ये हम जब बात कर रहे हैं तो अपने लिए नहीं कर रहे, अल्लाह ने जहाँ कहीं पे भी रखा है अच्छी पोजीशन पर रखा है, लेकिन आम आदमी सफर कर रहा है और इतनी शिद्दत से ये महसूस हो रहा है कि माशरा कहीं ना कहीं बहुत बड़े हादसे का शिकार ना हो जाए। देखिए लॉयल्टी, अभी आप देखें फ्रंटियर में आपका जो हो रहा है मामला कुछ अच्छे नहीं है, आपके बलूचिस्तान में मामला बिल्कुल ऐसा ही है। कराची, अभी आपको मैं कहूँ ना कराची को आप लीड करो तो आप कराची को ही सिर्फ आप कहोगे पाकिस्तान से अलग कर दो। मैं आपको बताऊं आम आदमी इस तरह से सोचने पर मजबूर हो। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मुझे मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे इख्तिताम की जानिब जाना है। आपको वो बेनिफिट नहीं मिल रहा है। बिल्कुल अशरफ भाई, आपने बड़ी खूबसूरत बात कही, और शजील गोपलानी भाई आपने तो हमेशा ही अपने दिल की बात की है, और आपकी मैं इज्जत पता क्यों करता हूँ, उसकी वजह भी है। एक तो मेरे बड़े भाई भी हैं, दूसरे सच्चे हैं, ईमानदार हैं और निडर हैं। आप वो आप खौफतर होकर बात करते हैं और हकीकत पे मबनी बात करते हैं। आपका शुक्रिया करूँगा कि आप तशरीफ़ लाए, पता नहीं क्या होगा शो के बाद, अल्लाह मालिक है। अशरफ भाई आपका शुक्रिया करूँगा कि आप तशरीफ़ लाए और आपने भी अपने दिल की बात नाज़िन तक पहुँचाई कि हमें इकट्ठा होना है, एक होना है, एक आवाज़ बनना है। असलम भाई आपको, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे 1 मिनट नहीं, चंद सेकंड है, आप कुछ कहना चाहते तो कह दीजिए। मैं ये कहना चाहूँगा वाटर बोर्ड के वाले अपने सारिफ से है कि आप एक चीज़ महसूस कर रहे हैं कि कई की जब बिलिंग बढ़ जाती है तो बिजली काट देता है, सुई शतरंज जब बिल बढ़ जाता है तो वो काट देता है। अगर वाटर बोर्ड ने किसी सारिफ की अगर पानी डिस्कनेक्ट किया तो मुझे मेरा नंबर ले, इब्रार से मुझे कॉल करें, मैं इसका जवाब आपको देता हूँ। क्योंकि नाज़िर किराम अजय भाई आपका बहुत शुक्रिया, चारों मेहमानों का शुक्रिया करूँगा। मैं एक बात कहूँगा, मैं क्योंकि वक्त नहीं है मेरे को, मुझे इख्तिताम की जानिब जाना है। ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं, यहाँ दरवेशी भी अय्यारी है, सुल्तानी भी अय्यारी। क्या बात है नाज़िर किराम, आज का बड़ा अहम टॉपिक था हमारा। हमने ताजरों की बात की, ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात पे बात की। ताजर बहुत ज़्यादा नाखुश हैं सिंध हुकूमत से, मेयर कराची से नाखुश हैं, क्योंकि उन्होंने जो कहा ताजरों को उनको नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि मेयर कराची सबको लेके चलता है, सबका दुख दर्द समझता है। और जहाँ तक असलम भाई की बात है कि आज तक ये वो इदारा है कि जिसने आपका कनेक्शन नहीं काटा, वो काटेंगे ही क्यों, जब पानी आएगा ही नहीं तो काटेंगे क्यों, ठीक है, जब पानी आने ही नहीं है तो काटेंगे क्यों बेचारे, क्यों पेट्रोल का खर्चा करके उनके घरों में भेजेंगे ये। तो वाटर बोर्ड की जहाँ तक बात है तो मैं इसके ऊपर तो बड़ा नाखुश हूँ। और जहाँ तक बात रही 530 टैंकर्स की, अगर 2200 से हिसाब लगाया जाए तो लाखों रुपए पर डे के आ रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? अगर वो पैसे आपके पास आ रहे हैं तो सीवरेज का निज़ाम बेहतर क्यों नहीं कर पा रहे? ये एक अहम नुक्ता मैं आपके सामने छोड़े जा रहा हूँ। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।